Up till now, we studied theoretical part of chapter 5, that is oscillation, in which we studied two types of simple harmonic motion, linear SHM as well as angular SHM. Based on the theoretical part of these two SHMs, today we will solve few numerics which are perceptual as well as knowledge based, and that will help you to solve MCQs as well as very short answer type questions during board exam. So let us begin with the numerics based on theory part of chapter 5. To begin with, we first consider few logical VSA type questions. For example, in the application of linear SHM, I am giving you some sample VSA or MCQ type which are logical and knowledge based and perceptual. You have to use your own brains while solving such questions. So let us discuss the first one. I will read the question. Amplitude of oscillating simple pendulum is doubled. What is its effect on its periodic time, the maximum velocity of pendulum, maximum acceleration produced during the motion of oscillating simple pendulum, and fourth is asked on the total energy of the oscillating simple pendulum. These are applied based. You know their theory part. We have to use the logic and you have to solve these perceptual type knowledge based logical numerics or VSA or MCQ type questions. What is given? Amplitude of oscillating simple pendulum is double. Amplitude double किया हुआ है. पहला क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा है what is its effect on time period. So what is the expression for periodic time of simple pendulum? T is equal to 2 pi square root its length upon acceleration due to gravity. So in the expression of time period, amplitude does not occur. Means time period is independent of amplitude. So if amplitude is changed, increased or decreased, तब जब तक आप लोग लेंथ और जी चेंज नहीं कर रहे हो तब तक टाइम पीरियड अफेक्ट नहीं होगा. सो इवन यू चेंज द एम्पलीट्यूड, increase or decrease it, periodic time of given oscillating simple pendulum will remain same, will does not change. So periodic time t remains constant. ऐसा लॉजिक यूज करके फ्यू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके जाने वाले हैं. द सेकंड थिंग दे हैव आस्क्ड अबाउट मैक्सिमम वेलोसिटी. वाइल ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम जब भी मोशन चालू होती है तभी उसको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है. यू नो द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी बिकॉज ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम इज एग्जीक्यूटिंग लीनियर एसएचएम. सो जो लीनियर एसएचएम का मैक्सिमम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है क्या है बताओ? V is equal to A omega is V max. What is general expression for velocity? Omega square root A square minus X square. Velocity is maximum at mean position. So X 0 हो जाता है. So V max will be A omega. तो अभी A omega के ऊपर डिपेंड करना है. अभी A change हुआ तो V will get affected. And if omega is constant, you say V max is proportional to A. So if A increases by the same amount, its velocity also will increase. So let V is V1 when amplitude is A1. When V is V2, let's amplitude is A2, which is twice A1, double किया है. So V2 by V1, if you take ratio, it will be 2 by 1, means velocity will get affected and it will become doubled because V is proportional to A at its maximum value. So velocity will get double. तीसरा क्वेश्चन पूछा है what is its effect on maximum acceleration.
सो एक्सेलरेशन का अगर हम लोग जिक्र करते हैं तो व्हाट इज जनरल एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, ओमेगा स्क्वायर एक्स। जब भी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तभी एक्सेलरेशन मैक्सिमम है एट एक्सट्रीम पोजीशन, सो a is maximum and its value will be a omega square, because when particle is at extreme position its displacement will be the amplitude of SHM, a omega square। ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट आएगा, सो वी कैन राइट a max proportional to again only a, not a square or a cube। ऐसा प्रोपोर्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो अभी क्या हुआ, एम्पलीट्यूड डबल किया ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम का, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस आल्सो विल गेट डबल। ये 3 टाइम्स किया तो ये कितना आएगा, डबल होगा, 3 2 जा 6, इट इज नॉट 3 3 जा 9, स्क्वायर नहीं लेना है, डबल करना है। सो A2 will be twice the amplitude which is increase or decrease, so acceleration maximum also will get doubled। The fourth question they have asked, what is its effect on total energy? So what is total energy, half n omega square a square, this is expression for total energy। mass constant है, omega constant है, half constant है, so we can relate total energy with amplitude, total energy proportional to now a square। अभी a square बनता है, तो अगर a twice किया, देखो क्या होता है, energy E1 when amplitude is A1, energy is E2, now amplitude they have made double, that is 2A1 bracket square। so bracket square क्या होगा, 2 2 जा 4, A1 square। so if you take ratio A2 by E1, रेशो ले सकते हैं, that will be 4A1 square divided by only A1 square। so this A1 square cancelled out and it will become 4। now double नहीं होगा, कितना होगा, 4 टाइम्स होगा, because total energy is proportional to square of amplitude, not only the amplitude। so you can write total energy becomes 4 times its total energy at the initial। 4 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स नहीं होगा। ऐसे स्मॉल बिट क्वेश्चंस जनरली जो नॉलेज और लॉजिकल बेस्ड है ना, वो एमसीक्यू के लिए नहीं तो वीएसए के लिए पूछे जाते हैं। One more I will let you know, in what position the tension in the string is maximum for oscillating simple pendulum। otherwise you will have one more, you know expression for time period of pendulum, you know different laws of pendulum, so it is dependent on its length, dependent on acceleration due to gravity। so at on the surface of earth G, when you move up acceleration due to gravity goes on decreasing, when you move down with reference to horizontal earth surface again G goes on decreasing। क्या होता है, देखो आप लोगों ने ग्राफ लास्ट ईयर स्टडी किया है, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी along with distance x on the surface that is at distance r from the center of earth। ये ग्राफ है ना, वो सेंटर ऑफ अर्थ से है, so you go away in deep inside the earth surface G decreases, when you move above again G also decreases। तो इसके ऊपर भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, what is the effect on time period if the pendulum, पेंडुलम के बारे में बहुत बात करते हैं क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो पेंडुलम का ही है, if it is taken in mine or it is taken in mountain at the top of the mountain, तो G इफेक्ट होता है। आप गए नहीं तो डाउन गए माइन में, खान में, तो भी G चेंज होगा, G चेंज होगा तो टाइम पीरियड डेफिनेटली चेंजेस। सपोज आई एम इन द लिफ्ट and the chain of the lift breaks, so this lift falls freely, इधर पेंडुलम तो है ही, वो ऑसिलेटिंग मोशन में है, लेकिन सपोज केबल टूट गई तो लिफ्ट फ्रीली डाउनवर्ड आएगा, तो एंटायर सिस्टम व्हिच इज इन ऑसिलेशन इज
falls down, what will be effect on the period of that system? वो सिस्टम के पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है? ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं which are perceptual types as well as logical thinking type. टेंशन मैक्सिमम कब है? माइंड में लिया सिंपल पेंडुलम, तो उसके टाइम पीरियड में क्या इफेक्ट होगा? अगर सैटेलाइट में सिंपल पेंडुलम है तो सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड क्या है? ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस वेयर जी हैज जीरो वैल्यू, तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो वो इनफाइनाइट मीन्स व्हाट? इट टेक्स अ लॉट टाइम फॉर टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मीन्स इट डज नॉट ऑसिलेट एट ऑल। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, इतना टाइम लगता है उसको, इनफाइनाइट टाइम लगता है एक ऑसिलेशन के लिए, यानी कि वो ऑसिलेट नहीं हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली आर आस्क्ड फॉर VSA और MCQ। वो CET की जो पेपर्स है ना, उसमें ऐसे ही लॉजिक परसेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस जनरली आर आस्क्ड। सो आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस। विल सॉल्व वन मोर। देखो मैंने 2-4 क्वेश्चंस और भी लाए हैं। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM हैज पीरियड ऑफ 2 पाई सेकंड। देखो मैं लिखती हूँ पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सो टी का जनरल एक्सप्रेशन क्या है? 2 ओमेगा अपॉन 2 पाई। व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई अपॉन टी। एंड दे हैव गिवन t इज इक्वल टू 2 पाई सेकंड। जनरल एक्सप्रेशन भी याद करने पड़ेंगे आप लोगों को। It has amplitude 10 सेंटीमीटर, उसका एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है। They have asked you to find velocity when its displacement is 8 सेंटीमीटर from mean position। जब भी x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर आएगी, तभी with the given data you have to find value of v। So what is general expression of v? Omega a square minus x square। A is given 10, x is given 8. We have to find omega. Omega they have not given directly. Instead they have given periodic time. So t is 2 pi. 2 pi upon 2 pi, that will become 1. So omega is 1. A square 100 minus 8 square 64. That will be 36, and velocity will be 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। 6 आएगी ना, वो ये सेमी में लिखा है, तो लास्ट आंसर वेलोसिटी का भी CGS में ही रहेगा। सो 6 सेंटीमीटर पर सेकंड विल बी द लास्ट आंसर। वन मोर, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। देखो मैं जितना हो सके उतना न्यूमरिक्स लेने की कोशिश कर रही हूँ। फटाफट वाइंड अप करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग न्यूमेरिक सॉल्व कर पाएंगे। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन कॉम्प्रेसेस अ स्प्रिंग बाय 10 सेंटीमीटर। देखो एक सिस्टम है, ये टेबल टॉप के ऊपर मैंने रखी है, ये स्प्रिंग है, उसको एक मास अटैच किया है। ऐसे एज्यूम करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो एवरीथिंग इज फाइन, द एंटायर सिस्टम इज एट रेस्ट। नाउ उन लोगों ने क्या किया है? दे हैव अप्लाइड फोर्स ऑन दिस स्प्रिंग। ये मास का छोड़ दो उसको, तो स्प्रिंग विल गेट कॉम्प्रेस्ड। तो जब फोर्स अप्लाई करते हैं तभी द स्प्रिंग का के चेंज होएगा, फोर्स कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। एंड दे हैव आस्क्ड यू टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी 10 सेंटीमीटर में कंप्रेशन करते हैं तो वर्क हैज टू बी डन, एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सो जब भी हम लोग फोर्स लगा के स्प्रिंग कंप्रेस करेंगे, वी आर नॉट सेटिंग इट इन ऑसिलेशन नहीं कर रहे हैं। तो वर्क के हिसाब से स्प्रिंग के ऊपर हम लोग वर्क करते हैं, दैट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी रहेगी, ऐसा पूछा है उन लोगों ने। So what is general expression for potential energy? Half k into x square. Instead of k we write m omega square. So half m omega square x square, or directly half k x square.
ऐसा भी पूछा जाता है तो k निकालना पड़ेगा। सो व्हाट इज k? F is equal to kx। ये लीनियर एसएचएम है ना, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इफ यू टेक ओनली इट्स मैग्नीट्यूड देन यू कैन फाइंड k एज F by x। अभी पहले k निकालना है। फोर्स गिवन है, फोर्स कितना है देखो, न्यूटन में 5 न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट वो फोर्स कितना कर रहा है, कॉम्प्रेस हो रही है, लेकिन कितने हिसाब से, 10 सेंटीमीटर। दिस इज इन न्यूटन, सो 10 शुड बी कन्वर्टेड इन एसआई, दैट इज 10 into 10⁻², मीटर। ये मीटर में आ जाएगा, ये डायरेक्टली 10 नहीं लेना है, यू हैव टू कन्वर्ट इट्स यूनिट। So 10 plus 1 minus 2 will be minus 1. So 10⁻⁻1 taken up will be plus 1. So K value कितनी आएगी, 50 न्यूटन पर मीटर। So ये 50 है और डिस्प्लेसमेंट कितने दी हुई है, तो with F and X given you have to first find K, and by knowing K now try to get the value of potential energy। potential energy कितनी आएगी फिर 50, X is 10 into 10⁻² entire bracket square, so it will be half into 50 into plus 1 minus 1 will be minus 1, minus 1 square will be minus 2, so 10⁻²। तो -2 यानी कि 100 से डिवाइड करो, so 50 by into 10⁻², so 2 decimal, 50 means 50.0, -2 यानी कि 2 decimals to the left shift करो, so 1 2, so directly it will become 0.5 upon 2, that is 0.25 जूल। ये एनर्जी है, तो लास्ट आंसर क्या रहेगा, इन टर्म्स ऑफ जूल। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन, बिकॉज वर्क डन स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, एंड वर्क डन इज नथिंग बट F into dx। ऐसे लेते हैं, ये गलत है। 5 into 10⁻⁻1, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 जूल। लेकिन अगर ये इस्तेमाल करते तो गलत रहेगा। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लेके के डिराइव करो, और ये पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेंबर प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। x स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, खाली x को प्रोपोर्शनल नहीं है, तो 5 जूल आंसर नहीं निकालना है, उसका आंसर कितना आएगा, 0.25 जूल। Such small questions are generally asked for which we have to use your own logic। कल जो हम लोगों ने न्यूमेरिक सॉल्व किए ना टेक्स्ट बुक के नीचे से, उसमें भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क पहले निकाला हम लोगों ने। ऐसा लॉजिक लेके सी की वैल्यू निकाली हम लोगों ने, तो सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक टाइम, ऐसा कुछ करके हम लोगों को न्यूमेरिक सॉल्व करने पड़ते हैं। So all questions, general formulae, special formulae, for example general formulae for periodic time, कौन सी भी एसएचएम हो जाए, क्या है, 2 pi square root f by x, और f by x is m by k। so जनरल फॉर्मूला क्या है, 2 pi square root m upon k। लेकिन ये लीनियर एसएचएम का है। अगर एंगुलर एसएचएम किया तो क्या होता है, मास शुड बी रिप्लेस्ड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड फोर्स कांस्टेंट यू शुड बी रिप्लेस्ड बाय टॉर्क कांस्टेंट c। सो जनरल फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, लेकिन स्पेशल केस में लीनियर और एंगुलर में दैट क्वांटिटीज वी विल टेक 2 pi square root m by k और 2 pi square root I by C। ये स्पेशल केसेस हो जाते हैं। और वन मोर आई जस्ट वांट टू टेक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। व्हाट इज इट्स पीरियोडिक टाइम, 2 सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 by t, दैट इज कितनी होगी, half, so that will be 0.5 hertz। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, 0.5 hertz। सो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉट ओनली ऑन टाइम पीरियड। पीरियोडिक टाइम सेकंड्स पेंडुलम का मालूम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, मीन्स व्हाट,
in 1 second it completes only the half oscillation. 0.5 है ना, हाफ हो गया ना, तो पूरा करने के लिए उसको 2 सेकंड लगते हैं, तो हाफ इट विल कंप्लीट कवर इन 1 सेकंड. इसका इनडायरेक्टली मीनिंग ऐसा है. So all these you have to take in account and you have to solve such perceptual, logical, theory based questions. न्यूमेरिक भी आ सकती है, नहीं तो theoretical questions भी सेट किए जा सकते हैं. So I will give one assignment on such logical questions to you. Everyone will solve it. If unable to solve, I will share the model key answer also. Don't worry. ऐसे क्वेश्चंस इकट्ठा करेंगे और कुछ सॉल्व करेंगे.